the culture of the later Vedic period was materially much advanced in comparison to Rig Veda. This is about the economic life. Okay, if you see your syllabus, so UPSC always asks questions in comparison with respect to Vedic period. So social life है, political life है, economic life है, examine. So here we have to see very clearly कि क्या exactly है ना. तो if I see the introduction, the basic timeline based introduction इन्होंने किया है. Rigvedic period 1500 to 1000 BC and later Vedic 1000 to 600. This period flourished mostly in north and northwest, while the later Vedic saw eastward expansion towards Gangetic Valley. So timeline plus geography both have been mentioned by the topper in the introduction, and it looks relatively sufficient. If you wish to add one or two things, you can add the sources also, because Rig Vedic information comes from the Rig Veda itself. For the later Vedic, we have to depend upon Sam, Yajur as well as Atharvaved. So if you wish to write, that can also be added in the introduction. but वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना कम है. और टाइमलाइन के पीछे जाओ या फिर सोर्स के पीछे जाओ, दोनों लिखने में कभी कभार ज़्यादा पॉइंट. तो हेयर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज timeline is very critically explained by the topper, and even the geographical area of the both of them has been sufficiently addressed. ठीक है, तो पूरा फैक्चुअल इंट्रोडक्शन है. अब इसमें अच्छी चीज़ क्या है, कंपैरिजन इन्होंने किया है, फूड हैबिट्स के बारे में किया है ना. तो व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल कल्चर, द डायमेंशन शुड बी नोन वेरी क्लियरली. इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्टली नोन टू द स्टूडेंट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट आंसर्स. So here if we see the comparison, yes, food habits, initially they were consuming rice, wheat, barley. Later on they started mixture of grains, and that's how the overall food making habits improved. Okay, then crafts and tradition, metals, like initially they were not aware of iron, later on they became aware of iron, and more crafts increase as a result of this. Here the quality of crafts etc. also improved from early Vedic to later Vedic period. Coinage, it was, if we see from the point of coinage, so here very less evidence. Here some mentioning is there, references are there, but it is not completely clear if we see the beginning of the coins. Archaeological evidence we have not found so far. That's why we say Panchmark coins start from Mahajanpada period. Clothing basis also information has been given here. Okay, then some areas has been highlighted where the development didn't happen, like the concept of private property did not develop in both of them. Barter system mostly continued because the coins didn't develop by the later Vedic period. This is appendage, ठीक है, इसको थोड़ा सा चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, because the question mostly talks about the material life. तो material life के बारे में बात करना है, ठीक है, and this is exactly the main requirement of this question. So if this question becomes a little bit difficult only when we do not know about the dimensions of economy. Okay, तो वो dimensions हमेशा पता होनी चाहिए. यहाँ पे एक example जो missing है, that is about initially they were pastoral in nature, but later on they shift towards agriculture. तो वो वाला point भी हम इस पे अच्छे से mention कर सकते हैं. Alright, so this is how answer should be written. जब उन्होंने एग्जामिन करने को दिया था, इफ इन सम स्पेसिफिक एरिया प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो वी शुड मेंशन दैट आल्सो, लाइक द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज एब्सेंट इन बोथ ऑफ देम. फ्रॉम 6th century BC, द लैंड ओनरशिप ऑफ प्राइवेट काइंड इज गोइंग टू बिकम मोर प्रोमिनेंट. लेट अस मूव फर्दर. कंक्लूजन में अगर देखें तो कल्मिनेशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड गेव राइज टू पॉलिटिकल कंसोर्टियम विद इन द इमर्जेंस ऑफ 16 Mahabharata. सो फॉरवर्ड लुकिंग लिंकेजेस व्हेनेवर वी क्रिएट देम इन आवर कंक्लूजन, इट बिकम्स वेरी वेरी यूजफुल, है ना. और एग्जामिनर को लगता है कि हाँ अच्छा कनेक्टेड हिस्ट्री में पता. और यहाँ पर उन्होंने सोर्स भी मेंशन कर दिया है. 16 Mahabharata, वी हैव 2 sources, जैना एज वेल एज द बुद्धिस्ट, है ना. अंगुत्रा निकाय, तो अंगुत्रा निकाय जो आपका ये आपका बुद्धिस्ट सोर्स है, और वहीं आपका भगवती पुराण जो है इट इज योर सोर्स ऑफ द जैनिज्म. तो दोनों आप मेंशन कर सकते हो. तो सोर्सेज जरूर मेंशन करो जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो. अगर हम सोर्सेज ठीक से मेंशन नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, इट विल लुक लाइक अ स्टोरी. और स्टोरी को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लेके आने के लिए एविडेंसेस चाहिए होते हैं, एंड दीज सोर्सेज बिकम्स योर evidences. So these are the good things which we have seen here. Very well connected conclusion are being done by them. That's why they are able to get those half marks extra just because of the conclusion. And when you add up all the number of questions that we write, तो कम से कम 10 से 15 नंबर तो इसी में ही पेपर 1 प्लस पेपर 2 में डिफरेंस आ जाता है. And
that's a huge chunk. That's a huge difference. When you'll appear in the interview, eventually you'll realize कि हाँ कितना बड़ा difference है एक एक मार्क्स का, और फाइनल रैंक में एक नंबर ऊपर होने से बहुत अच्छी सर्विस मिल सकती है. Hi, so welcome to Prep Career. Today I'm going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा road है. आप हम आराम से 3-4 महीने optional को अच्छे से अभी dedicate कर सकते हैं, right? So during this time, when you have a lot of time, उसको अच्छे से utilize किस तरीके से करें. दिस इज वेयर डॉन कम्स इन. डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पे रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए. बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते. कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते. दिस इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेल्युएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर. इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th. ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे. नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे. मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि हम शेड्यूल में क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो. ठीक है, एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स. दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो. सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट 4 मंथ्स, है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. व्हाट शुड बी दी अप्रोच, तो अप्रोच बहुत सिंपल है. अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ, एंड देन ऑन डेली बेसिस यू राइट फ्यू आंसर्स. हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे. एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो, उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है. हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका है अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर 1 डे. जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा. रफली कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो. और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस. ठीक है, तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है. फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें. राइट, दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है. जो पढ़ चुके हैं, एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं, हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंड आउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें. दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग. प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे. देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना, यू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल. देन ऑल्सो द कवरेज गोइंग टू बी मैसिव. पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे. दिस इज रफली द UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी. डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे. 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा. 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेल्युएट होकर कॉपीज़ मिल जाए. सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड. ऑलराइट, एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है. राइट, एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर. एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं, जिसमें हम हिस्टोरियन, बहुत बच्चों को हिस्टोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है. सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं. एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग. अब देखो हमने क्या किया है कि रफली 21 दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 डेज ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है. इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 22, 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग. बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं. तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए. वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए. बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं GS में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए. देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4, तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ
अगस्त आपका एंशिएंट फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है, और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो 1 दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स। ओके, सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर। तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाए, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रिकमेंड आप फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए। ओके, उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन, कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस, एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end or by the beginning of November itself, you'll be able to finish off this batch. All right, so all the very best. Thank you so much. इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।